ابتدا میں کلام تھا، کلام اللہ کے ساتھ تھا اور کلام اللہ تھا۔ یہی ابتدا میں اللہ کے ساتھ تھا۔ سب کچھ کلام کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ مخلوقات کی ایک بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور یہ زندگی انسانوں کا نور تھی۔ یہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اس پر قابو نہ پایا۔ ایک دن اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج دیا، ایک آدمی جس کا نام یحییٰ تھا۔ وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کی گواہی کی بنا پر ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، بلکہ اسے صرف نور کی گواہی دینی تھی۔ حقیقی نور جو ہر شخص کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ کلام دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، تو بھی دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اس میں آیا جو اس کا اپنا تھا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ تو بھی کچھ اسے قبول کر کے اس کے نام پر ایمان لائے۔ انہیں اس نے اللہ کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ ایسے فرزند جو نہ فطری طور پر، نہ کسی انسان کے منصوبے کے تحت پیدا ہوئے، بلکہ اللہ سے۔ کلام انسان بن کر ہمارے درمیان رہائش پذیر ہوا اور ہم نے اس کے جلال کا مشاہدہ کیا۔ وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا اور اس کا جلال باپ کے اکلوتے فرزند کا سا تھا۔ یحییٰ اس کے بارے میں گواہی دے کر پکار اٹھا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں نے کہا، ایک میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی کثرت سے ہم سب نے فضل پر فضل پایا، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن اللہ کا فضل اور سچائی عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے قائم ہوئی۔ کسی نے کبھی بھی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا فرزند جو اللہ کی گود میں ہے، اسی نے اللہ کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ یہ یحییٰ کی گواہی ہے جب یروشلم کے یہودیوں نے اماموں اور لاویوں کو اس کے پاس بھیج کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے انکار نہ کیا، بلکہ صاف صاف تسلیم کیا، میں مسیح نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ کیا آپ الیاس ہیں؟ نہیں، میں وہ نہیں۔ کیا آپ نبی ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے انہیں ہمیں جواب دینا ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یحییٰ نے یسایہ نبی کا حوالہ دے کر جواب دیا، میں ریگستان میں وہ آواز ہوں جو پکار رہی ہے، رب کا راستہ سیدھا بناؤ۔ بھیجے گئے لوگ فریسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اگر آپ نہ مسیح ہیں، نہ الیاس یا آنے والا نبی، تو پھر آپ بپتسمہ کیوں دیتے ہیں؟ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن تمہارے درمیان ہی ایک کھڑا ہے جس کو تم نہیں جانتے، وہی میرے بعد آنے والا ہے، اور میں اس کے جوتوں کے تسمے بھی کھولنے کے لائق نہیں۔
ये यर्दन के पार बैतनिया में हुआ, जहां याया बपतिस्मा दे रहा था। अगले दिन याया ने ईसा को अपने पास आते देखा। उसने कहा, देखो, ये अल्लाह का लैला है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा, एक मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे बड़ा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे नहीं जानता था, लेकिन मैं इसलिए आकर पानी से बपतिस्मा देने लगा ताकि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और याया ने ये गवाही दी, मैंने देखा कि रूह कुछ कबूतर की तरह आसमान पर से उतरकर उस पर ठहर गया। मैं तो उसे नहीं जानता था, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा तो उसने मुझे बताया, तू देखेगा कि रूह कुछ उतर कर किसी पर ठहर जाएगा। ये वही होगा जो रूह कुछ से बपतिस्मा देगा। अब मैंने देखा है और गवाही देता हूं कि ये अल्लाह का फर्जंद है। अगले दिन याया दोबारा वहीं खड़ा था। उसके 2 शागिर्द साथ थे। उसने ईसा को वहां से गुजरते हुए देखा तो कहा, देखो, ये अल्लाह का लीला है। उसकी ये बात सुनकर उसके 2 शागिर्द ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर देखा कि ये मेरे पीछे चल रहे हैं, तो उसने मुड़कर पूछा, तुम क्या चाहते हो? आप कहाँ ठहरे हुए हैं उस्ताद? उस्ताद, उसने जवाब दिया, आओ खुद देख लो। चुनाचे वो उसके साथ गए। उन्होंने वो जगह देखी जहां वो ठहरा हुआ था और दिन के बाकी वक्त उसके पास रहे। शाम के तकरीबन 4 बज गए थे। शमौन पतरस का भाई इंद्रियास उन 2 शागिर्दों में से एक था जो याया की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे। अब उसकी पहली मुलाकात उसके अपने भाई शमौन से हुई। उसने उसे बताया, हमें मसीह मिल गया है। मसीह का मतलब मसा किया हुआ है। फिर वो उसे ईसा के पास ले गया। उसे देखकर ईसा ने कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमौन है। तू कैफा कहलाएगा। इसका यूनानी तर्जमा पतरस यानी पत्थर है। अगले दिन ईसा ने गलील जाने का इरादा किया। फिलिप्पुस से मिला। तो उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। इंद्रियास और पतरस की तरह फिलिप्पुस का वतनी शहर बैतसैदा था। फिलिप्पुस नतनिएल से मिला। हमें वही शख्स मिल गया है जिसका जिक्र मूसा ने तौरात और नबियों ने अपने सहीफों में किया है। उसका नाम ईसा बिन यूसुफ है और वो नासरत का रहने वाला है। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? और खुद देख ली।
जब ईसा ने नतनिएल को आते देखा तो उसने कहा, लो, ये सच्चा इस्राएली है जिसमें मक्कर नहीं। आप मुझे कहां से जानते हैं? इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे देखा। तू इंजीर के दरख्त के साए में था। उस्ताद, आप अल्लाह के फर्जंद हैं। आप इस्राएल के बादशाह हैं। अच्छा, मेरी बात सुनकर कि मैंने तुझे इंजीर के दरख्त के साए में देखा, तू ईमान लाया है? तू इससे कहीं बड़ी बातें देखेगा। मैं तुमको सच बताता हूं कि तुम आसमान को खुला और अल्लाह के फरिश्तों को ऊपर चढ़ते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। तीसरे दिन गलील के गांव काना में एक शादी हुई। ईसा की मां वहां थी और ईसा और उसके शागिर्दों को भी दावत दी गई थी। मैं खत्म हो गई तो ईसा की मां ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। खातून, मेरा आपसे क्या वास्ता? मेरा वक्त अभी नहीं आया। जो कुछ वो तुमको बताए वो करो। वहां पत्थर के 6 मटके पड़े थे जिन्हें यहूदी दीनी गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते थे। हर एक में तकरीबन 100 लीटर की गुंजाइश थी। मटकों को पानी से भर दो। चुनाचे उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। आप कुछ निकाल कर ज़ियाफत का इंतजाम चलाने वाले के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जो ही ज़ियाफत का इंतजाम चलाने वाले ने वो पानी चखा जो मैं में बदल गया था, तो उसने दूल्हे को बुलाया। उसे मालूम ना था कि ये कहां से आई है, अगरचे उन नौकरों को पता था जो उसे निकाल कर लाए थे। हर मेजबान पहले अच्छी किस्म की मैप पेश करता है, फिर जब लोगों को नशा चढ़ने लगे तो वो घटिया किस्म की मैप पिलाने लगता है। लेकिन आपने अच्छी मैप अब तक रोक छोड़ी है। यूं ईसा ने गलील के काना में ये पहला इलाही निशान दिखाकर अपने जलाल का इजहार किया। ये देखकर उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो अपनी मां, अपने भाइयों, अपने शागिर्दों के साथ कफरे नहूम को चला गया। वहां वो थोड़े दिन रहे।